Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about October-November 2022 variance 41. Duration of this paper is for 2 hours. Let's see what we have in the paper. This is question number 1. Potassium chloride KCl and magnesium chloride MgCl2 are both ionic solids. Now we have enthalpy change of solution की value, lattice energy of KCl, hydration of potassium and chloridine, solution of MgCl2, lattice energy of MgCl2. Okay, now in this question, in part A, complete the energy cycle involving the enthalpy change of solution and the lattice energy of potassium chloride and the relevant enthalpy changes of hydration. Label your diagram. State symbols should be used. Okay. So that's easy. Since ये मेरे पास potassium chloride solid है, इसका मतलब मैं gaseous potassium ion और gaseous chloride ion को reaction करवाऊंगा और 1 mole of ionic solid में convert करूंगा, and that is going to be my lattice energy. Obviously ये मेरे पास aqueous potassium ion होंगे, ये मेरे पास aqueous chloride ion होंगे, because 1 mole of solid potassium chloride when dissolved in large amount of water, it gives an infinite dilute solution, that is aqueous chloride and aqueous potassium ion. This is going to be standard enthalpy change of solution, and obviously this is going to be hydration enthalpy. All right, so everywhere we have made the label diagram. Okay, use the data in table 1.1 to calculate the enthalpy change of hydration of magnesium ions. Show your working. Okay, अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला डिटरमाइन किया था, वो था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन माइनस लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी. So standard enthalpy change of solution of magnesium chloride is minus 155 minus lattice energy of magnesium chloride is minus 2493 plus hydration of magnesium ion we need to find out plus hydration of chloride ion. So chloride ki hydration is minus 364 and we need to multiply this value by 2 because we have 2 chloride ions in the formula. Now we need to find out the value of X, and the value of X from here is going to be, let me calculate, the value of X from here is going to be minus 1920, I believe, kilojoules per mole. So it's basically minus 1920 kilojoules per mole. All right, that's an easy stuff. Explain with reasons why the lattice energy of MgCl2 is more exothermic than the lattice energy of KCl. Obviously अगर MgCl2 की more exothermic है तो उसकी reason ये है कि magnesium के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ionic radius small है, इसकी charge density ज़्यादा होगी, cation anion के दरमियान electrostatic attraction stronger होगी, lattice energy which is why highly exothermic होगी. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं magnesium ion has high charge and small ionic radii. So it has high charge density. Thus, ions exhibits strong electrostatic attraction.
which is why its lattice energy is more exothermic. Remember, lattice energy is directly proportional to charge of the ion, and lattice energy is inversely proportional to size of the ion. Okay, define the following term: enthalpy change of atomization. That's what you have done with me in A1. तो हम यहाँ लिखेंगे enthalpy change when 1 mole of gaseous atom is formed from its elements in their standard states under standard condition. First electron affinity first electron affinity is easy. What we can write here is energy released when 1 mole of an electron is absorbed in 1 mole of neutral gaseous atom. Okay, what is mean by entropy? Entropy, disorderness of the system. Randomness of the system. Is called entropy. आप यहाँ लिख सकते हैं randomness of the system. Okay. Now the next is potassium chloride is very soluble in water at 20 degrees Celsius. Explain the solubility of potassium chloride by reference to change in entropy. Potassium chloride is very soluble in water because potassium chloride has ionic lattice, and this lattice breaks and converted into aqueous ions. And due to the formation of aqueous ions, entropy increases because mobility of ions increases. All right. So what we can write here is when potassium chloride is dissolved in water, it turns into aqueous ions due to the increase
in the mobility of ions, entropy increases because disorderness increases. Okay, use the Gibbs equation and your answer to E2 to predict whether potassium chloride is more soluble in water at 20 degrees Celsius or 80 degrees Celsius. Explain your answer. So Gibbs equation पहले देख लेते हैं. Delta G naught equals to delta H minus T delta S naught. एंथैल्पी चेंज हमारे पास यहाँ माइनस है, सॉरी प्लस है. ये माइनस, ये T. एंट्रोपी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है. तो जब भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो ये भी माइनस में आएगा. Not really. In fact, माइनस नहीं प्लस में आएगा बेटा. सो जब भी एंट्रोपी होती है प्लस स्पॉन्टेनियस प्लस में आता है. ये प्लस विल रिमेन एज इट इज. ये माइनस प्लस बिकम्स माइनस. ठीक है. तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस हो सकती है उस वक्त जब मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा. जब मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ये जो टी डेल्टा एस नॉट की टर्म है ये मोर नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगी. इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा एट दिस हाई टेम्परेचर. सो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं. एट हाई टेम्परेचर T delta S naught term is more negative. So delta G naught is also more negative, and reaction is spontaneous. Thus, KCl is more soluble at high temperature. All right. That's the end of question number 1. Let's move on to question number 2. Explain what is meant by the following term: homogeneous catalyst when reactants and catalyst exist in same physical state. In same physical state. Now, heterogeneous catalyst when reactants and catalyst exist in different physical state. All right. Iodide ions reacts with peroxy disulfate ions. This reaction is slow, but it is catalyzed by Fe2 plus ions. Write 2 equations to explain how this reaction is catalyzed by Fe2 plus ions. Okay, सबसे पहला काम, ये जो peroxy disulfate ion है आपके पास, ये Fe2 plus ions के साथ रिएक्शन करेंगे. Fe2 plus ions खुद ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस आइंस में कन्वर्ट होंगे. ये कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फेट आइंस में. ऑलराइट. वो हमसे यहाँ पर स्टेट सिंबल्स मांग नहीं रहा, इसलिए स्टेट सिंबल्स नहीं दे रहे. बट सिंस ऑल ऑफ देम आर आइंस, इसका मतलब सारे के सारे एक्वस मीडियम के अंदर होंगे. ऑलराइट. ये आपके रेफरेंस के लिए बता दिया मैंने. देन
Fe3+ आयंस है हमारे पास एक्वस मीडियम में, हम इसको रिएक्शन करवाते हैं आयोडाइड आयंस के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में और Fe2+ आयंस वापस रिकवर हो जाएंगे। तो आप नोट करें, हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था Fe2+ आयंस से और वापस हमें Fe2+ आयंस मिल रहे हैं, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट, बिकॉज रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। Suggest why the alternative route in the presence of Fe2+ ions has a lower activation energy than the route in the absence of a catalyst. देखो, जब absence of a catalyst होगा ना, तो जाहिर सी बात है ये दोनों reacting particles के ऊपर negative charge है. That's what we have discussed in the class as well. कि दोनों के दोनों particles are negatively charged. In the absence of a catalyst, these particles will experience electronic repulsion, and so they cannot react in the right orientation, which is why they have a higher activation energy. So to drop the activation energy, मुझे catalyst use करना पड़ेगा, ठीक है? So हम यहाँ लिख देते हैं in the absence of catalyst, both the reacting particles have similar charge. So due to electronic repulsion, they cannot react in a right orientation. In catalyst, reactants and catalyst exhibits attractive forces because both of them are oppositely charged. In catalyst, both experiences attractive forces. Due to opposite charges. All right. Nitrogen monoxide reacts with oxygen. This reaction is second order with respect to nitrogen monoxide and first order with respect to oxygen. Under certain conditions, the value of the rate constant K is 8.60 into 10 to the power 6. Construct the rate equation for this reaction. The rate equals to K concentration of NO power square and concentration of oxygen power square इसलिए क्योंकि उसका second order था इसलिए square लिखेंगे, ठीक है? Now the next part is calculate the initial rate of the reaction under these conditions when the initial concentration of nitrogen monoxide is this and the initial concentration of oxygen is 1.9 into 10 to the power minus 3. So guys, we know the value of K. So I will use this K की value in part 2. ये हो जाएगा rate equals to K. K की value है हमारे पास 8.60 into 10 to the power 6. Concentration of NO कितना है 7.2 into 10 to the power minus 4. क्योंकि उसका स्क्वायर हुआ है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे. Concentration of oxygen is 1.90 into 10 to the power minus 3. So यहाँ जब कैलकुलेटर यूज करेंगे हम तो हमारे पास बेटा आंसर आ रहा है आंसर हमारे पास आ रहा है बच्चे 8.47 into 10 to the power minus 3. All right. So हम यहाँ लिख देते हैं 8.47 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube second inverse, which is a unit of weight.
In the next is the drug cisplatin hydrolyzed in water. The rate equation is shown. This is the rate equation. The value of K is 2.5 into 10 to the power minus 5 second inverse under certain conditions. The reaction has a constant half life. अगर reaction की constant half life है, इसका मतलब ये actually first order है. सही है? ये confirmation हो गई कि it is a first order. वो कह रहे हैं explain why this is the case. एक और चीज यहीं से देखिए, इस इक्वेशन को देखिए. इस इक्वेशन में लिखा हुआ है रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ प्लैटिनम यानी सिस्प्लैटिन NH3 टेकन टू Cl2. तो अगर मैं इस कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिमूव होगा. जब साइन ऑफ इक्वलिटी रिमूव होगा तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा. एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन मींस कि जो सिस्प्लैटिन ड्रग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के. इसका मतलब ये हुआ, और यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिस्प्लैटिन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम यहाँ लिखेंगे रेट is directly proportional to the concentration of cisplatin drug as half-life is constant, which means order is first. अच्छा, हम फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से भी तो बता सकते हैं कि जब कोई नंबर नहीं होता तो फर्स्ट ऑर्डर होता है. सही है, हम इधर से भी पिक कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज दिस इंफॉर्मेशन इन दिस question to show that the half-life of this reaction is this. Okay. So मेरे पास एक फॉर्मूला है T half equals to 0.693 which was your ln2 over K. अब इशू ये है कि मुझे K की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर. दिस इज द वैल्यू ऑफ K which is given in the question. तो मैं इस वैल्यू को यहाँ प्लग इन कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा T half equals to 0.693 over K. K की वैल्यू है मेरे पास 2.50 into 10 to the power minus 5. तो यहाँ से हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी मेरे पास? लेट मी कैलकुलेट. ये हो जाएगा बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है. लेट मी रिकन्फर्म इट. 0.693 divided by 2.5 exponent minus 5. So it's basically मेरे पास है 27720. Alright, seconds. मेरे पास आंसर ये है 0.693 divided by this minus 5. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं 8 into 10 to the power minus 6 moles of cisplatin are added to 100 cm cube of water. Calculate the time taken for the concentration of cisplatin to fall to 2.5 into 10 to the power minus 6. Okay, that sounds tricky in a way कि मुझे सबसे पहले सिस्प्लैटिन के मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो 100 cm क्यूब में हमारे पास 8.00 into 10 to the power minus 6 moles हैं. 6 moles of cisplatin. राइट. अगर मुझे इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा.
तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिस्प्लैटिन मेरे पास आ जाएगा 8.00 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब। तो मैंने मोलर लिख दिया। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला ये है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि न्यू अमाउंट इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट ओवर 2⁻n। एंड गाइस ये जो n होता है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब न्यू अमाउंट हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 जो क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया हुआ है। हम इसको प्लग इन करेंगे। 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट हमारे पास ये गिवन था, राइट। हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.00 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻n। सही है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2n इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 8.00 इंटू 10⁻⁻5। सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2n इक्वल्स टू 8.00 इंटू 10⁻⁻5। मैं स्टेप्स में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। 2.5 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से 2n मेरे पास आ जाएगा 32। ठीक है, मैथ्स अगर आपको आता है तो आप जानते हैं कि हम मैथ्स में ये कर सकते हैं। मैं 2⁻n लूँ इक्वल्स टू, और 32 कब आ सकता है? जब मैं 2⁵ करूँ, राइट। सो आप जानते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, राइट। n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 5 आ जाएगी। सही है। आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ से एक और भी लॉग की वैल्यू भी अप्लाई करके कर सकते हैं। मैं लॉग की वैल्यू भी अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ से इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन ले रहा हूँ ताकि आपको लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2⁻n इक्वल्स टू 32। सही है, ये आंसर आ गया। यहाँ से आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग 2⁻n इक्वल्स टू लॉग 32। ठीक है, ये हो जाएगा n log 2 इक्वल्स टू log 32। वो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं होता, मैं इनके लिए स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीजें पता हो। log 32 क्या होता है मेरे पास? log 32 होता है मेरे पास 1.505। सही है। और log 2 क्या होता है मेरे पास? 0.301 इक्वल्स टू 1.505। तो अगर मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1.505 डिवाइडेड बाय 0.301। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4.99 विच इज बेसिकली 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो हम कुछ इस तरह से वर्किंग करके देंगे एग्जामिनर को, और फिर इस वर्किंग के थ्रू हम बेसिक अपनी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरे पास वैल्यू आई है 2 कितनी आई है, where is the value actually, या 227,720, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूंगा 2270 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि मेरे पास 5 हाफ लाइव्स आई हैं। ठीक है, मेरे पास कितनी हाफ लाइव्स आई हैं? 5 हाफ लाइव्स आई हैं। 5 हाफ लाइव्स आई हैं, तो मैं उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा। तो मेरे पास आंसर बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻5 सेकेंड्स। तो ये जगह 1.39 into 10⁻5 seconds. That's my answer. That's the toughest part. I mean,
That's not an easy part for 2 marks. It's a lot of a working actually. But somehow हमने कर लिया है, तो आप बेहतर अंदाज से इसको जज कर सकते हैं. Let's move on to the next question. Data should be selected from table 3.1 in order to answer some parts of the question. The standard electrode potential are measured under standard condition. Describe the standard conditions used in SN4, SN2 plus half cell. आप सब जानते हैं कि भाई जब भी हाफ सेल यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी? स्टैंडर्ड कंडीशन होगी कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब हो. सही है. जो टेम्परेचर है वो आपके पास 298 केल्विन हो. ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. ठीक है. और कंसंट्रेशन किस चीज की होगी? कंसंट्रेशन SN2 प्लस / SN4 प्लस दोनों की होगी. बोथ हैव दिस सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन. अच्छा, मैं यहाँ प्रेशर नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज गैसियस स्टेट में नहीं है, तो जब गैसियस स्टेट में नहीं होगी तो प्रेशर भी नहीं लूंगा मैं. फिर वो आपसे कह रहे हैं complete the diagram below to show how E0 half cell of tin can be measured experimentally. Your diagram should be fully labeled to identify the apparatus and substances. आप जानते हैं कि अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टिन हाफ सेल का डिटरमिन करना है, तो मैं उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करूंगा. और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और टिन की जो वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है. ठीक है, मेक सेंस. वेयर इज द वर्किंग? ओके, सो हम वर्किंग करते हैं. Oops, my bad. ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. ऑलराइट. ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया. और हमने कहा था कि whenever ions are involved, gases are involved, platinum is used as an electrode. सही. Let's label this. हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं at 180 m pressure, 298 केल्विन. ये हमारा वोल्ट मीटर है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं क्योंकि पोटेंशियोमीटर हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर होता है. ये हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है जिस पर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग हुई भी होती है. और प्लैटिनम ब्लैक जो है वो मिनरल होता है जो कि बेसिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, या समटाइम इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. और ये आपका हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी, जिसको मैंने 1 मोलर कहा है. ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है. ओके. और इस इलेक्ट्रोलाइट में टिन 2 प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी, जिसको हमने 1 मोलर कर दिया. और टिन 4 प्लस की भी कंसंट्रेशन होगी जिसको हम 1 मोलर लिखेंगे. ऑलराइट. और हम सब जानते हैं कि ये हमारा सॉल्वेज होगा. लेट मी सी कि हमने सारी चीजें कर ली हैं. योर डायग्राम शुड बी फुली लेबल्ड. मैंने फुल लेबल कर दी है, कोई चीज छोड़ी नहीं है. एपरेटस शो किया मैंने, सब्सटेंसेस सारी शो किए. ओके. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने पूछा नहीं है, टर्मिनल्स पूछे नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब टिन 2 प्लस and 1 mole per dm cube chloride are mixed. Use relevant E0 values to explain whether a reaction occurs between these two ions. दो चीजें हैं बहुत ऑब्वियस. सबसे पहली बात जो कि मुझे यहाँ से क्लियर कट नजर आ रहा है और हम पढ़ कर आ रहे हैं A1 केमिस्ट्री में, इनफैक्ट हमने A2 केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल आयंस होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. इसका मतलब
tin 2 plus ions are reducing agent. सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है आपको A1 केमिस्ट्री में, आपने भी पढ़ा है A1 A2 केमिस्ट्री में कि क्लोराइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्लोरीन गैस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही। और हम जानते हैं कि दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी रिएक्शन नहीं करते, दो रिड्यूसिंग एजेंट भी आपस में कभी रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब अगर मुझे इन दोनों को रिएक्ट करवाना होगा तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा इनफैक्ट, ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस both are reducing agents, so they cannot react together. 2 marks का part है, इसका मतलब we need to give one more reason, so they cannot react together. This is the one reason. Second reason सुनिए बहुत ध्यान से, मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। ये आपकी क्लोरीन है, अगर मैं इसको लिखूं जो कि आपको टेबल में गिवन है तो उसको इसने इस तरह से लिखा है, और इसकी वैल्यू है प्लस 1.36 वोल्ट, राइट। आप सब जानते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को फ्लिप करूंगा, क्योंकि क्लोराइड ने रिएक्शन करना है, तो आई नीड टू फ्लिप दिस इक्वेशन। आई रिपीट, क्लोराइड रिएक्शन करना चाहता है, उसके लिए ये इक्वेशन फ्लिप होगी। अगर ये इक्वेशन फ्लिप होगी तो इसकी वैल्यू भी फ्लिप होगी। जब इसकी वैल्यू फ्लिप होगी तो वैल्यू माइनस 1.36 वोल्ट हो जाएगी, और अगर वैल्यू माइनस में चली गई है तो ओवरऑल आंसर भी माइनस में आएगा, और अगर ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E naught value of chlorine becomes negative, so E naught cell will also becomes negative, hence reaction is not feasible. All right, I hope it makes sense to you. Equal volume of 1 mole per dm cube SN2 plus and acidified 1 mole per dm cube VO2 plus are mixed. Write an equation for the reaction that takes place in the resulting mixture. पहली बात मैंने आप लोगों से कहा था कि whenever ions involved हम हमेशा ionic equation यूज करेंगे, तो इसका मतलब मुझे tin की ionic equation यूज करनी है, this equation, right? और VO2 plus के लिए ये equation यूज करेंगे। So मैं इन दो equations को लिख लेता हूँ अपने पास। माय गुडनेस, मतलब मुझे डायरेक्टली काम करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इक्वेशन है, फिर उसको सॉल्व करते हैं वहां पर। ये है हमारे पास SN4 प्लस, ये लेस पॉजिटिव है, ये मोर पॉजिटिव है, तो VO2 प्लस को हम एज इट इज रख लेते हैं रिडक्शन फॉर्म में, क्योंकि इसकी एसिडी की वैल्यू मोर पॉजिटिव है। ये रखा हमने, और टिन की जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव है, इसको फ्लिप करके लिख लेते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद कैंसिल होंगे, और हमारी फाइनल इक्वेशन होगी 2VO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस SN2 प्लस एरो SN4 प्लस 2V3 प्लस 2H2, and that's my final equation. इसको यहां से लेट मी चेक कि ये इक्वेशन यहाँ लिखी जा सकती है या नहीं। नहीं लिखी जा सकती। आई हैव टू राइट इट अगेन, माय गुडनेस। V2VO2 प्लस SN2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन
एरो 2v3 plus SN4 plus 2H2O. That's the equation. SN4 plus 2H2 plus 2. Yeah, that's the equation. Okay. A solution of SN2 plus is electrolyzed for a measured time using a steady current. याद रखिएगा कि आपके पास मीडियम एक्वस है, मोल्टन नहीं है. हाँ, इसका ख्याल रखना है. A mass of 2.95 gram of tin metal is produced at cathode. And again, he said cathode. तो इसका मतलब कैथोड पे तो रिडक्शन होती है. ठीक है, ये जहन में होना चाहिए. इसका मतलब जो टिन बनेगा वो टिन 2 प्लस आइंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके टिन मेटल में कन्वर्ट होंगे. समवेयर डाउन द लाइन ऐसे ही कुछ हो रहा होगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर द सेम टाइम बाय द सेम करंट. Calculate the mass of aluminum metal produced at the cathode. Give your answer to 3 significant figures. Show your working. Ouch. Okay. Step number 1. मैं moles of tin calculate करूंगा सबसे पहले. तो मैं moles of tin calculate करने के लिए जो मास मेरे पास है 2.95, उसको मैं डिवाइड करूंगा 10 के AR से, विच इज 118.7. सो मेरे पास यहां से मोल्स आ रहे हैं 2.95 to 118.7 is going to be 0.0248. तो 0.0248 5 है तो 249 कर देते हैं हम राउंड ऑफ करके. सही है, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है. ओके. अब प्रॉब्लम ये है कि टिन मेटल प्रोड्यूस हो रहा है एट कैथोड. सही है. सो इक्वेशन इस तरह से बना लेते हैं. टिन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो टिन मेटल. ये तो हो गया कैथोड. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है. सो aluminum is converted into aluminum ions plus 3 electron, right? कुछ ऐसा ही होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना चाहता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो जाएंगे. सो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी 3SN2 plus 2 aluminum arrow 2 aluminum ion plus 3 tin, right? So ratio between, ये थर्ड स्टेप ले लेते हैं. एल्यूमिनियम और टिन, इन दोनों का रेशियो क्या है? 2:3 का. ओके. अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. दैट्स हाउ द redox reactions takes place. ओके. सो रेशियो आ रहा है मेरे पास ये, और आपके पास टिन के मोल्स कितने हैं? 0.0249 मोल्स. सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे? तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, डिवाइडेड बाय 3 होगा. उप्स, 0.0249 multiplied by 2 divided by 3 is going to be 0.0166. 0.0166. ओके. मुझे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मिल गए, मुझे मास ऑफ एल्यूमिनियम डिटरमिन करना है. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिटरमिन करने के लिए मैं जो मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा एल्यूमिनियम के AR से, विच इज 27. तो जब मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 27, so it's going to be 0.4482. 0.4482 ग्राम. मुझसे एग्जामिनर ने कहा
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो मैं आंसर दूंगा 0.448 ग्राम। ओके, let's move on to the next question. A sample of butanoic acid is shaken with a mixture of two immiscible solvents, ethoxyethane and water. Solvents from two layers. The butanoic acid is distributed between the two layers. That's called partition coefficient. Its concentration in ethoxyethane being higher than its concentration in water. ये बहुत ही important statement है, so that you will get the idea कि हमने numerator में और denominator में रखना किसको है। फिर कह रहे हैं state what's mean by the term partition coefficient. तो हम यहाँ जवाब देंगे it is a ratio of the concentration of solute in two different solvents at equilibrium. All right. The partition coefficient Kpc for butanoic acid between ethoxyethane and water is 3.50. Kpc की value given है, guys. Make sure कि ये चीज ध्यान में रहे. Then a solution of 2 grams of butanoic acid and 100 cm cube of ethoxyethane is added to water. This mixture is left until there is no further change in the concentration of butanoic acid in either solvent. The mass of butanoic acid dissolved in ethoxyethane layer is now 1.62. Calculate the volume of water used. Okay. So आपके पास basically total mass of butanoic acid था 2.00 gram. उसमें से 1.62 ग्राम डिसॉल्व हो गया in 100 cm cube of ethoxyethane. फाइंड आउट कर सकता हूं 1.62 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100. अब इशू ये है कि वाटर 0.00 ग्राम था, उसमें से 1.62 डिसॉल्व हो गया हेक्सेन में, ओ सॉरी इथॉक्सीथेन में, तो बच कितना जाएगा? तो 2 minus 1.62 is going to be 0.38. सो हम यहाँ बोलेंगे कि 0.38 ग्राम of acid is dissolved in x cm cube of water, because उसने वॉल्यूम तो मुझे दिया नहीं, and that's the volume I need to find out. ठीक है, x cm cube of water. so अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी हो तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.38 divided by x. Now we know the value of Kpc, which is 3.50 equals to 1.62 divided by 100. ये न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि ये ज्यादा सॉल्युबल है, ओवर x. सो यहां से x की वैल्यू, यहां से गाइस x की वैल्यू आएगी आपके पास 82 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा मेरे पास 82 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, all right. An aqueous solution of butanoic acid can be used to make buffer solution. Define buffer solution. Solution which maintain its pH
fairly constant even upon the addition of a small amount of acid or alkali. Suggest one organic compound and one inorganic compound that can be added to two different samples of aqueous butanoic acid to produce buffer solution. Guys, we need to produce the buffer solution. Okay, so बफर सॉल्यूशन कब बनता है हमारे पास? जब एसिड बफर होता है, तो हमने आपको क्लास में रिक्वायरमेंट बताई है, उसकी दो चीजें चाहिए होती हैं. एक चाहिए होता है आपको वीक एसिड, और इन दिस केस आपको चाहिए ब्यूटानोइक एसिड. और ये जो ब्यूटानोइक एसिड है ये आपका ऑर्गेनिक है, सही है. और दूसरा चाहिए होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सॉल्ट तो गिवन नहीं है, तो सॉल्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ब्यूटानोइक एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा NaOH से, सो दैट सॉल्ट बन जाए. सही है. तो इनऑर्गेनिक क्या हो जाएगा यहाँ से? NaOH. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ब्यूटानोइक एसिड होगा, आई मस्ट से. और जो इनऑर्गेनिक है वो जाहिर सी बात है बफर प्रोड्यूस करने के लिए NaOH, ताकि हमें सॉल्ट मिले. सही है. तो जब सॉल्ट बनेगा तो बेटा सोडियम ब्यूटानोइड बनेगा, CH3 CH2 CH2 C डब्ल्यू नेगेटिव Na पॉजिटिव. सही. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, the solubility of aluminum hydroxide in water is 2.47 into 10 to the power minus 9. Give the expression for the solubility product of aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये पार्शली डिसोसिएट होकर कन्वर्ट होगा एल्यूमिनम आइंस में और हाइड्रोक्साइड आइंस में. तो केस भी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनम आइंस and concentration of hydroxide ions power q. जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इक्वेशन में वो पावर में चले जाते हैं. सही है. यूनिट नहीं पूछा. ओके. कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Ksp of aluminum hydroxide. Include the unit of Ksp in your answer. Okay guys, एग्जामिनर ने मुझे सॉल्युबिलिटी दी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया. सो बहुत इजी सा फॉर्मेट होगा. अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मुझे इक्वेशन में मालूम है तो ये कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम आइंस में और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस में. ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 3 मोल है. अगर एग्जामिनर ने 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 लिया है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? सेम हो जाएगी, 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर, राइट. और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? वो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगी, 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 3. सो ये कितनी होगी आपके पास? 2.47 exponent minus 9 into 3. Oops, 2.47 exponent minus 9 into 3. So it's going to be 7.41 into 10 to the power minus 9. सही है. तो मुझे एल्यूमिनियम आयन की भी कंसंट्रेशन मालूम हो गई, मुझे हाइड्रोक्साइड आयन की भी कंसंट्रेशन मालूम हो गई. नाउ I can plug in these values in the
KSP एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा 2.47 इंटू 10⁻⁻9, ये है मेरे पास 7.41 इंटू 10⁻�9, और मैं इसका क्यूब करूंगा तो यहाँ से KSP की वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है, कैलकुलेटर पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 1.01 इंटू 10⁻⁻33, और ये यूनिट हो जाएगा मोल फोर DM-12। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1.01 इंटू 10⁻⁻33, और ये हो जाएगा मोल फोर DM-12। ओके, now move on to the next question, that is question number 5. This question is related to transition element. Transition element का question आता है तो काफी स्कोरिंग होता है अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हो। जितने पेपर मैंने अभी तक सॉल्व किए उसमें आपको पता है इसकी वेटेज काफी ज्यादा होती है, दैट कवर्स अराउंड 20 से 25 मार्क्स। मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो दैट कवर्स अ लॉट ऑफ वेटेज इन द पेपर। So transition element is a d block element which forms one or more stable ion with incomplete d orbital. That's the definition of transition element. Two of the 3d orbitals are 3dx y orbital and 3dz square orbital. Sketch the shapes of these two orbitals. Okay. तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर आपको याद हो मैंने क्लास में आपको एक्सिस इस तरह से दिए थे, राइट? मैंने कहा था ये x है, ये y है, ये z है। तो जब हमने इससे dxy बनाया था तो हमने ये बना के दिया था आपको, राइट? हमने ये बना के दिया था, ठीक है? सो अब आपसे ये कह रहा है तो ऑब्वियसली बेटा ये इसने एक्सेस चेंज कर दिए। जब इसने एक्सेस चेंज कर दिए तो मैं एक बिटवीन द एक्सेस डी ऑर्बिटल ऐसे बनाऊंगा और एक मैं बिटवीन द एक्सेस डी ऑर्बिटल ऐसे बनाऊंगा, ठीक है? यानी बिटवीन द एक्सेस रहना है, क्योंकि डी एक्स वाई जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सेस। डी जेड स्क्वायर हैज टू बी ऑन द एक्सेस, तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया। ऑलराइट, फिर वो कह रहे हैं निकल आयंस फॉर्म्स मेनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग nickel aqueous ions is green. Okay, nickel aqueous ion is green. Now the next is when an excess of 1,2-diaminoethane is added, the color of the solution changes to blue. Okay, जब हमने ये ऐड किया तो solution का color blue हो गया. This is due to the formation of this complex ion, यानी bidentate ligand attach हो गया. Explain why the two solutions are colored and why the colors are different. जब लाइगेंड डिफरेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी डिफरेंट होता है, राइट? सो पहला पॉइंट, डिफरेंट ligands have different splitting pattern of d orbital, ठीक है? तो जाहिर सी बात है जब डिफरेंट स्प्लिटिंग होगी तो डिफरेंट स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के लिए वी नीड अ फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. सो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन we need a photon of a specific frequency. Right? तो अगर एब्जॉर्प्शन विजिबल रेडिएशन के अंदर होगा, विजिबल रीजन के अंदर होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑब्जर्व होगा. So for absorption takes place in the visible region of takes place in the region of visible spectrum
in the region of visible spectrum. Hence, complementary color is observed. Now, I must say कि हमने ये क्लास में किया है. Complementary color is observed, right? Next, the nickel ions complex can exist as a mixture of two stereoisomers. Complete the three-dimensional diagram to show one of the stereoisomers. Each EN ligand can be represented using this. Three-dimensional कह रहा है तो इसका मतलब dotted line pyramid जरूर बनेगा. काफी छोटी दी है. Okay. N करना है 3 bidentate ligands attach किए हुए हमने. तो हम पहले तो N attach कर लेते हैं, फिर हम इसको फिक्स कर देंगे. फॉर इंस्टेंस ये आपका फिक्स हो गया. फॉर इंस्टेंस ये फिक्स हो गया आपका. फॉर इंस्टेंस ये फिक्स हो गया आपका. तो वो आपसे कह रहे हैं नेम द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन ड्रॉन इन B2. तो भाई ये तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. जब भी 3 bidentate ligands attach होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है. And also type of stereoisomerism shown by this. So octahedral geometry because 3 bidentate ligands हैं, 6 dative bonds बने हुए. And the most important thing मैंने क्लास में बताया था कि अगर आपके पास 3 bidentate ligands हों, right? 3 bidentate ligands हों, तो आपको हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, यानी मिरर इमेजेस मिलेंगे. सही है. तो हम यहाँ पर स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल, क्योंकि हमें इस कॉम्प्लेक्स के मिरर इमेजेस मिलेंगे. Now the next part of the question is कि iron 2 carbonate and nickel 2 carbonate both decomposes when heated. All right. FeCO3 decomposes at a lower temperature than this. If it decomposes at a lower temperature, then it means इसकी charge density ज़्यादा. और इसकी charge density इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसका ionic radius जो है वो smaller होगा और charge ज़्यादा होगा. So हम यहाँ लिखेंगे Fe2 plus ions has higher charge and smaller ionic radii. So it has high charge density. Thus, it easily distorts the electrons of carbonate ions. Hence, FeCO3 decomposes at low temperature. Okay. Oh, okay. Sounds interesting. A is a pale green salt containing Fe2 plus ions. Sample of 2.6 gram of A, that's an important value, is dissolved in water and the solution is made up to exactly 100 cm cube of water. 25 cm cube sample of this solution is placed in a conical flask and titrated against 0.01 mole per dm cube acidified potassium magnate 7. Okay, equation is given. The average titer value is 35.0 cm cube of 0.01 mole per dm cube acidified potassium magnate 7. Describe the color change that is seen in the conical flask at the end point of the titration. आप जानते हैं कि जो आपके पास Fe2 plus ions होते हैं वो वैसे तो ग्रीन होते हैं, लेकिन जब हम उसको एसिडिफाई करते हैं, ऑब्वियसली कैसे पता चल रहा है एसिडिफाई कर रहे हैं? हमें पता चल रहा है इससे कि हम इसको एसिडिफाई कर रहे हैं, राइट? तो जब हम इसको एसिडिफाई करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा कलरलेस.
solution will turns to colorless. और जब हम ब्यूरेट से KMnO4 से टाइट्रेट करवाएंगे तो it will turn to pink. तो हमने क्लास में बताया कलरलेस टू पिंक, तो हमने लिखा भी हुई। फिर हमारे पास है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन A. That's a lot of calculation. Okay. Okay, a lot of calculation. Guys, first of all, we know कि हमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 गिवन है। इसका मतलब हम सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ KMnO4 बोले या MnO4 नेगेटिव बोले, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 35.0 into 0.0100 डिवाइडेड बाय 1000। सो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 3.5 into 10 to the power minus 4 moles. ओके अच्छा, इक्वेशन में मुझे MnO4 नेगेटिव और Fe2 प्लस का मोलर रेशियो गिवन है। ये 1 मोल है, ये 5 मोल है। एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, ये 1 मोल, ये 5 मोल। और मेरे पास इसके मोल्स हैं 3.5 into 10 to the power minus 4। सो ऑब्वियसली इसके कितने मोल्स होंगे? तो मोल्स ऑफ Fe2 प्लस हमारे पास आ जाएंगे 1.75 into 10 to the power minus 3 moles. ऑलराइट, अब ये जो मोल्स मैंने फाइंड आउट किए थे ये 25 cm³ में किए थे, बिकॉज आपने 25 cm³ जो है उससे टाइट्रेशन की थी। सही। सो 25 cm³ में कितने मोल्स हैं हमारे पास? 1.75 into 10 to the power minus 3 moles, राइट। तो अगर मेरे पास 100 cm³ है और ये 100 cm³ मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने सॉल्यूशन को मेकअप किया था, ठीक है। इसमें कितना मोल्स हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इन 100 cm³ कितने हो जाएंगे? मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 7 times 10 to the power minus 3 moles. ओके। मोल्स आ गए। नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ Fe2 प्लस, एंड फॉर दैट मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा AR ऑफ आयरन से, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 55.8। तो यहाँ से मास ऑफ आयरन मेरे पास कितना हो जाएगा? 0.3906 ग्राम। ठीक, मुझे परसेंटेज पूछ रहे हैं बाय मास ऑफ आयरन। सो ऑब्वियसली मेरे पास मास ऑफ आयरन कितना है? 0.3906, और मेरे पास टोटल मास कितना था? वो था मेरे पास 2.62 ग्राम इंटू 100। सो गाइज मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको, और कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास ये हो रही है हमारे पास 0.3906 डिवाइडेड बाय 2.62, ये हो जाएगा 14.1% राउंड ऑफ करने के बाद। एक्चुअली मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 14.908%। तो मैं 14% सो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या यूज करूंगा? 14.91%, ठीक है। Okay, that's the end of question number 5. Let's move on to the question number 6. Oops.
अगेन ट्रांजिशन, दैट्स सी, मैंने कहा था ना कि ट्रांजिशन हैज अ लॉट ऑफ वेटेज इन रिसेंट पेपर्स। तो ट्रांजिशन का जो चैप्टर है वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से कवर करें तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा सा टाइम दीजिए, बहुत प्रॉपर तरीके से उसके एक एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ डिटेल के साथ डिस्कस कीजिए, सो दैट इन क्वेश्चंस पे आपको कमांड हो, जेन्युइनली कमांड हो, ठीक है। An aqueous solution of copper 2 sulfate is blue color due to presence of aqueous copper 2 ions. Write an equation for the reaction between aqueous copper 2 ions and NaOH. That's what we have done in the class. That's easy. That's precipitation reaction, guys. Plus 2 OH negative ions. Precipitation reaction होगा। मैंने बेसिकली आपको दो तरह से करवाया हुआ है, लेकिन मैं ये करके दे रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा इजी है। लेकिन मैं क्लास में क्या करवाया मैं वो भी बता देता हूँ आपको, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि मैंने क्लास में डिस्कशन क्या किया। तो CuH2O टेकन 6 2+, एंड सिंस एसिड बेस रिएक्शन होता है आपके पास प्रोडक्ट ये बनती है CuH2O टेकन 4 OH टेकन 2 plus 2H2O, that was the thing। और मैंने कहा था कि ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स होते हैं इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CuOH टेकन 2 डॉट 4H2O, याद आया। तो मैंने क्लास में ये करवाया है आपको, लेकिन मैं इसमें से मजीद सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूँ कि मैंने ये और ये एज इट इज लिखा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल कॉम्प्लेक्स मैंने ये लिखा कंपाउंड और 6 वाटर मॉलिक्यूल शो कर दी, ठीक है। दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल इन द पेपर, कोई इशू नहीं होगा आपको। और मुझे लगता है कि मैंने जो क्लास में करवाया है ना वो ज़्यादा बेहतर है, तो हम क्लास वाली ही चीज़ फॉलो कर लेते हैं, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी रहे कॉन्सेप्ट्स में भी। तो ये हो जाएगा CuH2O टेकन 4 OH टेकन 2 प्लस 2H2O। ऑलराइट, ये हमने क्लास में किया तो हमने वही चीज़ लिखवा दी आपको as it is। Write an equation for the reaction between aqueous copper ions and excess of concentrated hydrochloric acid। Again ये ligand substitution reaction है, हमने क्लास में जो करवाया हम exactly वही लिख के दे देते हैं आपको, चेंजेस नहीं करते हैं अपनी एंड से। ये हो जाएगा आपके पास 4 chloride ions, reversible sign, CuCl4 2 minus plus 6H2। Okay, now in an excess of ammonia is added to solution of this ion, deep blue solution containing this complex is formed। There are two possible stereoisomers with the formula this। Complete the diagrams to show the two stereoisomers in the boxes below। यार अगर आपको याद हो क्लास, मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स मिले तो आप सबसे पहले ये देखें कि उसमें सिचुएशन क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम M कहते हैं, अमोनिया इज अ लाइगेंड तो ये L4 हुआ, वाटर इज ऑल्सो लाइगेंड और वो डिफरेंट लाइगेंड है तो हम X लेंगे, और क्योंकि दो लगे हुए तो ये आएगा। मैंने कहा था whenever you will find ML4X2 की सिचुएशन इन द पेपर, इसका मतलब आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, राइट। सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, और सिस ट्रांस बनाने का तरीका ये है कि आप वाटर को सेम साइड पर रखेंगे और इसी वाटर को डायगोनली अटैच कर देंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। बाकी आप अमोनिया अटैच कर दीजिए, ये NH3, ये भी NH3, ये भी NH3, बॉन्डिंग नाइट्रोजन से दिखाएंगे, बॉन्डिंग ऑक्सीजन से दिखाएंगे, क्योंकि लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमेशा। दिस इज NH3, दिस इज NH3 एंड दिस इज NH3, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहे हैं यूज योर आंसर इन B1 टू डिड्यूस वेदर ईच ऑफ दीज आइसोमर्स इज पोलर और नॉन पोलर। तो आपको पता है जो मैंने पहला आइसोमर लिखा है वो सिस है और सिस पोलर होता है, सिस इज पोलर, और ट्रांस जो है वो डायगोनली अटैच्ड होता है इसलिए ट्रांस नॉन पोलर होता है नॉर्मली। ठीक है, सिस पोलर होगा, ट्रांस जो है वो नॉन पोलर होगा। The numerical value of stability constant of this complex ion is 1.4 into 10 to the power minus
1.4 10 to the power 13 define stability constant. तो stability constant exactly वही है, it is the equilibrium constant for the formation of the complex ion in a solvent from its constituent ions. This definition is also given in Roger Norris, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. सही है. Next is compare the stabilities of this complex and this complex and explain your answer. Okay. Is there any value given in this? No. Okay. Okay. इसकी value दी हुई है इसमें. इस complex की value हमें given है. And higher value of stability constant. इसका मतलब this complex is more stable. Okay. और कोई value नहीं दी हुई. Okay. So conclusion ये है कि इसकी stability constant की value higher है. इसका मतलब वो तमाम complexes जो अमोनिया से बनेंगे वो ज़्यादा stable होंगे, उनकी formation ज़्यादा favorable होगी as compared to the ones which are formed through water. सही है? So हम यहाँ लिख सकते हैं higher value of K step means complex CuNH3 taken 4, H2O taken 2 is more stable than CuH2O taken 6 2 plus. All right. Hence, formation of former complex is more favorable than the later one. All right. Next is write an expression for the stability constant of this complex ion. State the units of the stability constant. तो पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. इक्वेशन लिख के दिखाते हैं जो हमने क्लास में लिखी है. हम उसी इक्वेशन को लेते हैं. ये है हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट. हम उसको एक्वस अमोनिया से ट्रीट करवा रहे हैं. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास CuNH3 taken 4 H2O taken 2 बन रहा है प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. ठीक है. दैट वाज द इक्वेशन. सो हमसे कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखो, तो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है. स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है अमोनिया वाला, हम वो लिखते हैं. और आप जानते हैं कि चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट. ये आ गया. ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट जो है वो एक्वस कॉपर 2 सल्फेट है. चार्ज हैज टू बी इनसाइड द ब्रैकेट. And concentration of ammonia, and since we have 4 moles of ammonia in the equation, इसलिए हम इसको 4 से उसका पावर 4 कर देंगे. आप जानते हैं ये यूनिट इसे कैंसिल, तो 1/mol 4 dm minus 12 होगा. तो अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स 4 dm 12. एंड आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. मैं इसकी यूनिट डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ. मोल
inverse 4dm12, right? In a particular solution, the concentration of this complex ion is 0.0074 mole per dm cube, and the concentration of ammonia is this. Use your expression in C part 3 and K step value of this to calculate the concentration of copper complex ion in the solution. Okay, इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करनी है स्ट्रेट अवे. तो के स्टेप की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.40 into 10 to the power 13, और जो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन है 0.0074. जो वाटर की कंसंट्रेशन है वाटर वाले कॉम्प्लेक्स की वो कैलकुलेट करनी है हमें, तो हम x ले लेते हैं इनटू अमोनिया की कंसंट्रेशन है 0.57 और हम उसको पावर 4 करेंगे क्योंकि इसके 4 मोल्स हैं इक्वेशन है. तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गाइस वो आ जाएगी. लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 5.01 into 10 to the power minus 15. All right. तो हम यहाँ लिख देते हैं 5.01 into 10 to the power minus 15. Let me check my calculation again. डबल चेक कर लेते हैं, ऐसा ना गलती हो गई हो. 1.4 divided by 0.0074 divided by answer. Yes, that's the answer. Confirm. Okay, let's move on to the next part of the question. Phenanthrolene and ethane dioate ions are bidentate ligands. Ruthenium ion forms an octahedral complex with phenanthrolene and chloride ions. The complex ion contains 2 phenanthrolene molecules. Iron 3 ions from an octahedral complex with ethane dioate ions only. Deduce the formula and charge of each of this complex ion. Okay. इथेन डायोएट आयंस आयरन के साथ अगर कर रहे हैं और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसका मतलब यू नीड 3. चार्ज उसका 3+ होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल होना चाहिए आपको. सो आई बिलीव हम इस तरह से लिख सकते हैं आयरन के लिए Fe 3+ चार्ज उसी वक्त आएगा जब हम इथेन डायोएट आयन के 3 मोल्स लेंगे. चार्ज इसके ऊपर ओवरऑल 3- लगेगा सो दैट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3+ आए. सही है, ये मैटर करेगी बात. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. आयरन को हम x ले लेते हैं. इथेन डायोएट आयन के ऊपर चार्ज -2 होता है, इंटू 3 करें इक्वल्स टू होल चार्ज इज -3, देन x -6 इक्वल्स टू -3, देन x इक्वल्स टू +3. इसका मतलब मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रखी. कुछ और नंबर लेता तो ऑब्वियसली वो +3 में नहीं आता फिर. और ऑक्टाहेड्रल उसी वक्त बनेगा बाइडेंटेट लिगेंड से जब आप 3 बाइडेंटेट लिगेंड यूज करेंगे, राइट. और फिनेंथ्रीलीन आयन जो है वो भी बाइडेंटेट लिगेंड है. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए ऑब्वियसली बेटा आपको 2 फिनेंथ्रोलिन चाहिए और 2 क्लोराइड आयंस चाहिए. इनफैक्ट ये लिखा हुआ भी है. तो अगर 2 फिनेंथ्रोलिन मॉलिक्यूल यूज कर रहा है एग्जामिनर, देन इट मींस मैं यूज करूंगा Ru. 2 फिनेंथ्रोलिन मॉलिक्यूल है तो ये हो जाएगा C12H8N2 टेकन 2. ये बाइडेंटेट लिगेंड्स 2 हो गए. और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंप्लीट करने के लिए क्लोराइड आएंगे. चार्ज इसके ऊपर है 3+, तो यहाँ पर +1 होना चाहिए. कैसे जरा देखिए, हम समझा देते हैं. रुथेनियम को x ले लीजिए. ये जो आपके पास बाइडेंटेट है ये तो न्यूट्रल है, इसको इग्नोर कर दीजिए. क्लोरीन -1 चार्ज होता है, इंटू 2 कीजिए, होल चार्ज इक्वल्स टू +1, देन x -2 इक्वल्स टू +1, देन x इक्वल्स टू +3. सी थेनियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने 3+ रखी है और आयरन की भी 3+ ही रखी है. ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन कंफर्म कि हमने जो कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल ठीक बनाया है या नहीं बनाया है. बट अगेन दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट. इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत समझदारी से काम करना होगा. क्वेश्चन नंबर 7. द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड P is shown in figure 7.1. P is optically active, used in a static to identify all chiral carbon atoms on the structure of P.
ओके, तो मुझे स्टेरिक जो है वो सिर्फ एक ही नजर आ रहा है और वो ये है। इसके अलावा मुझे कोई स्टेरिक नजर नहीं आ रहा है, इसके अलावा मुझे कोई और कायरल कार्बन एटम नजर नहीं आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज plane polarized light is passed through a pure sample of 1 enantiomer of P. This is then repeated with the pure sample of the other enantiomer of P. Describe the results of these two experiments stating the similarities and difference. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे सिमिलैरिटीज भी बतानी है, डिफरेंसेस भी बताना है रिजल्ट्स का, और रिजल्ट्स को डिस्क्राइब भी करना है। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो दोनों एनेंशियोमर्स के अंदर रोटेट होगी। तो पहली तो सिमिलैरिटी ये होगी। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट rotate in both the isomer, in both the enantiomers. Isomers बोले enantiomers बोले, it doesn't make any difference because enantiomers are the mirror images of each other. ये याद रखिएगा. That's what we have done in the class. Enantiomers किसे कहते हैं? Mirror images. सही है। और डिफरेंस क्या होगा? दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट तो करेंगे लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। They will rotate plane polarized light in different direction. ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली। एक राइट हैंड साइड जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। एंड ऑब्वियसली जब डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो एंगल भी डिफरेंट होगा विद डिफरेंट एंगल। ठीक है, P can be used to make compound Q in a single step reaction. Okay. ओके, सबसे पहली तो बात ये जज करने की है जो कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज योर एस्टर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दिस इज योर एमाइड। सही है। नाउ द नेक्स्ट इज give the structural formula of the compound that is added to P to make Q and give the formula of the other product of this reaction. ओके, मैं इसको जरा यहां से कॉपी करता हूं बात समझाने के लिए। ठीक है, इसको यहां से कॉपी करते हैं बात समझाने के लिए, एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सिमिलैरिटी और क्या चेंजेस है। ठीक है जी, वेट करें एक मिनट, जरा देखते हैं। ओके, आप अच्छे बच्चे हैं, आप समझते हैं कि ये बेंजीन रिंग सेम है, ये एस्टर का बॉन्ड सेम है, राइट, ये CH2 सेम है, ये CH सेम है, यहाँ NH2 था, उसकी जगह पे CH3CO ग्रुप आया। यानी आप नोट करें यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह पे ये ग्रुप आया है। इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। और आप जानते हैं कि ये एक अमाइड है, राइट, दिस इज योर अमाइड। तो एसाइल हैलाइड जब अमाइन से रिएक्शन करते हैं तो एमाइड्स फॉर्म होते हैं। सही है, ये याद रखिएगा कि दिस इज एमाइन एंड दिस इज एमाइड। तो अमाइड्स आर फॉर्म व्हेन अमाइन्स रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड। और कौन सा वाला एसाइल हैलाइड है? 2 कार्बन का एसाइल हैलाइड है, दैट इज इथेनॉइल क्लोराइड। सो मेरा आंसर होगा CH3COCl। ये इथेनॉइल क्लोराइड है, अदर प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ से H और यहाँ से H
और यहाँ से Cl दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl, राइट। तो अदर प्रोडक्ट जो है वो HCl आएगी आपके पास। गाइस यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर एमाइड एंड दिस इज योर एमाइन। तो एमाइड से एमाइड उस वक्त बनता है जब हम एसाइल हैलाइड्स के साथ यानी इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, यू कैन इवन चेक इन द रजिस्टर, राइट। सो आप इतने स्मार्ट हो कि आप उसको क्लिक करें। और मैंने क्लिक कैसे किया, मैंने इस तरह से जज किया। देखो मैं जजमेंट बताता हूँ अपनी। मैंने कहा जी ये बेंजीन रिंग सेम है, तो मैंने कहा ये बेंजीन रिंग भी सेम है। फिर मैंने कहा कि जनाब ये CO एस्टर वाला बॉन्ड सेम है, हमने कहा हाँ जी सेम है। फिर हमने कहा कि जनाब ये CH2CH सेम है, हमने कहा हाँ जी CH2CH सेम है। तो हमने जजमेंट क्या ली, हमने क्रैक इस तरह से किया कि पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ यहां से एक हाइड्रोजन जा रहा है और उसकी जगह पे ये ग्रुप अटैच हो रहा है। और अमाइन से अमाइड अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये ग्रुप उसी वक्त अटैच होगा जब इथेनॉइल क्लोराइड यूज करेंगे। एंड ऑब्वियसली इथेनॉइल क्लोराइड इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, HCl। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। You guys have to be really, really smart in such questions. आगे चलते हैं। When ester is treated with lithium aluminum hydride in dry ether, ester linkage is cleaved by addition of 4 hydrogen atoms and 2 alcohols are produced. Draw the structures of the compounds formed when Q is treated with an excess of lithium aluminum hydride in dry ether. Where is Q? Oh my goodness, this is Q. Okay, let me erase the entire info. मैं इसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लूं ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व कर सकें। ओके चलो इसको यहां लिखते हैं। लेट्स सी कि एग्जामिनर हमसे क्या सॉल्व करवाना चाहते हैं। क्वेश्चन bit tricky but not an issue. Okay, the first thing is sorry, वो कह रहे हैं एस्टर क्लीव कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास आया है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CH3OH। दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड देखो, सेकंड स्ट्रक्चर में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज, ये NH एज इट इज। ओके, अगर आपको याद हो मैंने क्लास में करवाया था कि जो अमाइड होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करता है तो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। यू कैन चेक इन द रजिस्टर, राइट। तो इसका मतलब ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। यस और नो? एंड ऑब्वियसली आप सारे बच्चे समझदार हैं, आप जानते हैं कि ये CO इज गोइंग टू बी OH। बट जाहिर सी बात है मेरे पास एग्जामिनर कह रहा है एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो अगर एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड फर्दर रिड्यूस होगा और कन्वर्ट होगा ये NH एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज। और ये जो ग्रुप है ना आपके पास COOH, दैट इज योर ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, दैट इज OH, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी एक प्रोडक्ट जो है ना वो ये होगी, तुम्हारा एक अल्कोहल ये होगा और तुम्हारा दूसरा अल्कोहल ये होगा। These are the two alcohols actually. So you need to write this structure and this structure in the paper, क्योंकि वो तुमसे कह रहा है क्वेश्चन में कैटेगोरिकली 2 alcohols are produced। तो मैंने 2 अल्कोहल प्रोड्यूस करके दिखाए तुम्हें। सही है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। और यहाँ लिख लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर था। फिर वो आपसे पूछें कंपेयर द बेसिसिटीज
of compound P, compound Q, and phenylamine. Oh my goodness, compound P, compound Q, and phenylamine. Phenylamine, compound P, compound Q, P, Q. अच्छा, ये तो एलिफेटिक अमाइन है, तो एलिफेटिक अमाइन तो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं क्योंकि लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. कंपाउंड Q, ये लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि अमाइड्स न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिड से रिएक्शन करते हैं ना वो एल्कली से रिएक्शन करते हैं. और उसकी रीजन ये होती है कि अमाइड में जो नाइट्रोजन है उनका लोन पेयर पाई बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में आता है. वी हैव डिस्कस्ड दिस रीजन इन द क्लास. यू कैन इवन चेक योर रजिस्टर इन अमाइड्स का टॉपिक, उसमें चेक कर सकते हो आप. सही है. और कौन सा है? फिनाइलमाइन. सो इसका मतलब ये हुआ कि P इज मोस्ट बेसिक, और सबसे लीस्ट जो होगा वो Q होगा क्योंकि वो अमाइड है, और उसके बाद फिनाइलमाइन. सही. अब वो आपसे रीजन पूछ रहे हैं, तो रीजन तो बहुत सिंपल सी है. रीजन ये है कि इन P lone pair of nitrogen is easily available for protonation due to the positive inductive effect of alkyl group. ठीक है. In Q lone pair, oops, in Q, my bad, I don't know what's going on. In Q lone pair of nitrogen is delocalized with the pi bond of oxygen. So lone pair is not available for protonation. Okay. In phenylamine, lone pair of nitrogen is delocalized with the pi bond of benzene ring. Okay. फिर वो कह रहे हैं आपसे P can be used to make compound R in two-step reaction showing figure 7.1. Identify the reagents and conditions used for the two-step in this reaction. Okay, तो सबसे पहला काम ये है कि आपने एक्चुअली इस बेंजीन रिंग के अंदर NH2 इंट्रोड्यूस किया है, और वो उसी वक्त इंट्रोड्यूस होगा जब आप नाइट्रेशन के थ्रू NO2 इंट्रोड्यूस करेंगे. राइट. तो इसका मतलब आपने नाइट्रेशन कराई है, और नाइट्रेशन कराने के लिए आई नीड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सही है. और टेम्परेचर जो है वो मुझे यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ठीक है. अब स्टेप 2 में देखिए, ये आपके पास एस्टर है
और आपने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, इसका मतलब आपने एस्टर का बॉन्ड ब्रेक किया। तो एस्टर का बॉन्ड ब्रेक करना भी है, बट एक और मसला है, और वो ये कि जब नाइट्रोजन NO2 इंट्रोड्यूस करोगे तो वो कन्वर्ट होगा NH2 में, और अगर NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर यूज करेंगे, और कंडीशन जो है वो आपके पास रिफ्लक्स होगी। सिर्फ यही हमारी बेसिक जो है वो इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ से क्लिक हो रही है, राइट। ये बेसिक्स है हमारी। और कोई चेंजेस इसमें देखने हो नहीं, NO2 से NH2 में गए तो इसका मतलब पहले नाइट्रेशन कराई फिर रिडक्शन कराई, ठीक है, दैट्स नाइट्रेशन दैट्स रिडक्शन। बाकी ये नेक्स्ट स्टेप में हो रहा होगा, वो 2 स्टेप का हिस्सा एग्जामिनर ने नहीं बनाया, ठीक है। Next is complete the table by drawing the structures of the organic products formed when R is treated separately with the reagents given. R, where is R? This is your R. Let me check this R. Okay. Wait. Okay. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस में, यानी डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना है, तो अगर आप एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सेकंड कार्बन पे और 6 कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच होगा क्योंकि 4th ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो एक ब्रोमीन मैं यहाँ पर अटैच करूंगा, एक ब्रोमीन मैं यहाँ पर अटैच करूंगा, 4th ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, इसलिए उसको बिल्कुल भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि चेंजेस क्या आएंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं P कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस कंपाउंड T। ओके, ओके, in aqueous solution T has a property called an isoelectric point. Explain what is mean by the term isoelectric point. pH at which amino acid exists as zwitterine. That is no net electrical charge. T can be polymerized under suitable conditions. No other monomer is involved in this reaction. Draw a section of the polymer chain form that includes 3 T monomers. Identify the repeating unit on your diagram. My goodness, T. Where is T? Let's find out T. Oops, where is T? Oh, here you go, T. Okay. वेट करें, मैं जरा T यहाँ लिख लूं अपने रेफरेंस के लिए, सो दैट मैं उसका स्ट्रक्चर फिर तरीके से बनाऊं, और जब स्ट्रक्चर बन जाए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा, बैक एंड फोर्थ नहीं जाना पड़ेगा। ओके, सो देखिए बेटा, बहुत ऑब्वियस एक चीज क्लियर मुझे यहाँ से नजर आ रही है। जब वो ये कह रहे हैं कि कोई और मोनोमर यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि 3T मोनोमर्स, यानी ये 3 मोनोमर्स आपको बनाने और आपस में रिएक्शन करेंगे। और आपस में किस तरह से रिएक्शन करेंगे कि इसका NH2 दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 रिएक्शन करेंगे, एंड फॉर दैट हम एक्चुअली इस तरह से रिएक्शन कर लेते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको अरेंज कैसे कर रहे हैं। दिस इज NH2, this is CH. Wait. We need to write in such a professional way कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
NH2, दिस इज CH, CH के साथ CH2 है और CH2 के साथ CH2, ये बेंजीन रिंग है। आई एम ट्राइंग कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट बना के दूं आपको। और इसके साथ ये COH, ये मेरा पहला मोनोमर आ गया। मैं एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरा मोनोमर भी लिखूंगा, प्लस NH2, ये CH के साथ CH2 और ये बेंजीन रिंग अटैच हुआ है। ठीक है, और ये आ जाएगा COOH। नाउ द थर्ड मोनोमर इज NH2, दिस इज योर CH2 और ये बेंजीन का रिंग आ जाएगा और ये आ जाएगा COOH। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, ऑब्वियसली यहां से OH जाएगा और यहां से H जाएगा। सो कंटिन्यूएशन अब आपने दिखानी है, तो कंटिन्यूएशन जो है वो ये होगी NH, ये आपकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी NH। जैसा लिखा है वैसे ही शो करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना इसमें स्ट्रक्चर को अलाइंड और एडजस्ट करने की मिस्टेक्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। सो आई होप यू कैन सी दैट कि मैं किस तरह से इसको एडजस्ट कर रहा हूं। दिस इज NH के साथ ये बॉन्ड, ये CH2, ये बेंजीन रिंग, and then CO and then NH, ये NH हो गया, NH बेंजीन, CH के साथ CH2, ये बेंजीन रिंग और ये हो जाएगा CO और ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन। तो आपने नोट किया मैंने बॉन्ड कंटिन्यूएशन NH से दिखा के CO पे कंप्लीट किया। वो आपसे कह रहे हैं 3 मोनोमर्स, तो मैंने 3 मोनोमर्स शो किए। फिर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट ऑन योर डायग्राम। माय गुडनेस, रिपीटिंग यूनिट ऑन द डायग्राम। सो रिपीटिंग यूनिट तो ये होगा बेंजीन CH2 CH CO, बेंजीन CH2 CH CO, यही रिपीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो बेंजीन, ये हो जाएगा व्हाट हैपेंड, चले, ये हो जाएगा बेंजीन CH2 CH CO। नहीं, आप नोट करें, ये कह सकता हूं मैं, ये पूरा ग्रुप जो है बार बार रिपीट हो रहा है। चेक करें, ये ग्रुप फिर रिपीट हुआ, फिर चेक करें ये ग्रुप फिर रिपीट हुआ। दैट्स द आंसर। ओके, दैट्स 17 मार्क्स का क्वेश्चन। माय गुडनेस, दैट्स अ ह्यूज पेपर, दैट्स अ टफ पेपर गाइस। Benzene is an aromatic molecule. State the CC bond angle of the hybridization shown by the carbon atom in benzene. तो bond angle होगा 120 और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं वहां इस तरह से लिखा जाता है। फिर है आपके पास benzene reacts with chloroethane in the presence of a catalyst. The reaction mechanism is called electrophilic substitution. The first step in the reaction is the generation of electrophile. Write an equation for the reaction that generates this electrophile. अब जाहिर सी बात है क्लोरोइथेन से आप इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो ये होगा CH3 CH2 Cl। आप इसको AlCl3 कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करवाएं तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव और ये आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 प्लस।
ठीक है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल, इंक्लूड ऑल रेलेवेंट कर्ली एरोज एंड चार्जेस। तो दैट्स इजी टास्क एक्चुअली। हम इसको रिएक्शन करवा देंगे इससे, तो हमारे पास एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। पाई कॉम्प्लेक्स तो हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह का बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने H यहाँ एडजस्ट किया, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, ऑलराइट। और ये डॉटेड लाइन है। Shifting of bond, removal of hydrogen takes place, so that you will get what? Your product, which is CH2, which is CH3 plus hydrogen ion. Okay. Next is chlorobenzene and chloroethane have different reactivities in nucleophilic substitution reaction. Identify a suitable reagent to illustrate this difference in reactivity. The reagent chosen should give visibly different results with chlorobenzene and chloroethane. आप जानते हैं कि ये aromatic alkyl halide है, ये रिएक्शन नहीं करता किसी भी कंडीशन में। ये aliphatic alkyl halide है, ये रिएक्शन कर लेता है। तो अगर मुझे रिएजेंट चूजन करना हो तो ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा सिल्वर नाइट्रेट। आप जानते हैं एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। फिर वो कह रहे हैं राइट इक्वेशन टू डिस्क्राइब एनी रिएक्शन दैट अकर। सो यार इस रिएक्शन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्लोरोइथेन को सबसे पहले रिएक्शन करवाओ NaOH से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपके पास क्लोराइड आइंस फ्री हो जाएंगे। ये फ्री क्लोराइड आइंस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे। बल्कि आप फ्री ना कहें, आप इसको इस तरह से कह दें कि ये NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको रिएक्शन करवा लें NaCl से, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे एंड NaNO3। हम इस तरह से आंसर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर इक्वेशन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस in the reactivities of chlorobenzene and chloroethane in nucleophilic substitution reaction। तो बेटा आप बताएंगे कि due to the delocalization of pi bond of benzene carbon chlorine bond is difficult to break due to its greater stability। Okay, this happens because chlorine involve its lone pair with the benzene ring, with the benzene ring। Okay. Next is gas liquid chromatography involves a stationary phase and a mobile phase. Name or describe in detail suitable substances that can be used for each। stationary phase के लिए तो जाहिर सी बात है, हमारे पास GLC में वैक्सी पॉलीमर था, हाई बॉइलिंग लिक्विड था। स्टेशनरी फेज के लिए वैक्सी पॉलीमर था। हाई बॉइलिंग लिक्विड हमने कहा था।
हमने क्लास में पढ़ाया था कि पोरस डायटोमेशियस अर्थ भी होता है जो कि इनर्ट मटेरियल होता है और उसके ऊपर ये वैक्सी पॉलीमर की कोटिंग की हुई होती है। दैट एंटायर थिंग विल सर्व एज अ स्टेशनरी फेज। तो आप अगर इतना भी लिख देंगे 1 मार्क क्या है तो मोर देन इनफ होगा। मोबाइल फेज जो है वो ऑब्वियसली आपकी कैरियर गैस है। इट कैन बी नाइट्रोजन और एनी इनर्ट गैस, नाइट्रोजन और एनी inert gas like helium। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे a mixture of 3 organic compounds is separated by gas liquid chromatography. The chromatogram obtained is shown in figure. The amount of each substance is proportional to the area under its peak. ये है each substance is proportional area under this peak. Explain the meaning of the term retention time. तो रिटेंशन टाइम तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ डिटेक्शन तक का जो टाइम होता है वो रिटेंशन टाइम होता है। ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट कंपाउंड जो टाइम ग्लास कॉलम में स्पेंड करता है फ्रॉम टाइम ऑफ इंजेक्शन टू डिटेक्शन उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। टाइम दैट इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम टेकन in which compounds stays in the column from point of injection point of detection। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बी इन द मिक्सचर, शो योर वर्किंग। Oh my goodness, for that I have to find out the entire thing। Okay, okay, that's 30, that's 100, okay, and that's 25 I believe। ठीक है, कि मैंने एरिया डिटरमिन कर लिया रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के थ्रू। सो ये मेरे पास 155 टोटल एरिया आ रहा है। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 30 टोटल एरिया मेरे पास कितना आ रहा है 30 प्लस 100 प्लस 25, सो इट्स गोइंग टू बी 155। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मुझसे वो कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ बी निकालो। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है परसेंटेज ऑफ बी। उसके लिए मैं देखूंगा बी कितना है मेरे पास 100 ओवर 155 इंटू 100। तो मेरे पास बेटा कितना आ रहा है ये, लेट मी चेक। 100 इंटू 100, 100 into 100 divided by 155, it's going to be 64.516 आ रहा है मेरे पास, राइट। तो परसेंटेज बेसिकली मेरे पास कितनी आएगी 64.5%। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
complete table 9.1 to give the number of peaks in the carbon 13 NMR spectrum of each of the 5 isomers that has an ester group. Okay, number of peaks. So guys, ये तो बहुत आसान है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. So यहाँ पर 5 आएंगे peaks. सही है. नेक्स्ट इज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. तो यहाँ पर भी 5 आएंगी. Now the next is 1 2 3 4 5. तो ये भी 5 आएंगी बेटा आपके पास. ठीक है, अब इसको ओपन करके लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए. CH3 CH CH3 then CO2 and then CH3, right? Let's find out कि इसमें कितने हैं. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और बेटा इन दोनों का सेम एनवायरनमेंट है. सो आपके पास टोटल कितनी पीक्स आ जाएंगी? 4. इसी तरह से हम इस वाले को ओपन करके लिखते हैं. CH3 CO O CH CH3 CH3. तो इसमें भी सेम है, 4 होंगे. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये दोनों मिलाकर 4. यानी इन दोनों का एनवायरनमेंट भी क्या है? सेम. ठीक है. बाकी बहुत सारे ऑब्वियस थे, वो हमने एज इट इज शो कर दिए. फिर वो कह रहे हैं स्टेट the number of peaks that would be seen in the proton NMR spectrum of methyl butanoate. Name all the splitting patterns seen in this spectrum. Whew, okay. Tricky. CH3, CH2, CH2, CO, O, CH3. Guys, सबसे पहले इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा सिंगलेट. इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा ट्रिपलेट. इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये भी आपको देगा ट्रिपलेट, क्योंकि नेबर में 2 प्रोटॉन्स. लेकिन इसके ऊपर जब n+1 रूल देंगे तो इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन ये हैं, 3 ये हैं, 5 हैं. 5+1 कितना हो जाएगा? 6. ये आपको सेक्सट्रेट पीक देगा अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर. 4 के बाद, क्वाड्रेट के बाद जितनी पीक्स होती हैं वो सब मल्टीप्लेट होती हैं, तो आप इसको मल्टीप्लेट भी कह सकते हो, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितनी आ जाएंगी यहाँ पर? 1 2 3 4. 4 पीक्स आ जाएंगी मेरे पास प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में. सो मैं यहाँ लिखूंगा 4. स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? एक सिंगलेट है, ठीक है, एक सेक्सटेट है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है एग्जामिनर की वजह से? मल्टीप्लेट. एंड एज यू कैन सी आपके पास 2 ट्रिपलेट हैं. ठीक है. नेक्स्ट, माय गुडनेस, D and E are both esters with the molecular formula C5H10O2. Their protons NMR spectra are shown in figure 9.2 and 9.2 and figure 9.3. ठीक है. और ये वैल्यूज दी हुई हैं. लेट्स सी क्या पूछ रहे हैं वो हमसे. Deduce the structure of the 2 esters D and E and draw their displayed formulae in the boxes below. यहाँ टोटल एनवायरमेंट्स कितने हैं D में? 1 2 3 4. ये भी 2 क्वाड्रेट्स हैं, 2 ट्रिपलेट्स हैं, 4 एनवायरमेंट्स हैं. तो मुझे ये देखना है कि इसमें से 4 एनवायरमेंट्स कहाँ से मिलेंगे मुझे, राइट? दैट्स हाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि 2 एनवायरमेंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे. 2 एनवायरमेंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? 2 एनवायरमेंट्स. ओके, फोर एनवायरमेंट्स है ना, 1 2 3 4. और ट्रायल एंड एरर पे जाना पड़ेगा बेटे. हम सबको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से ट्रिपलेट्स मिल रही हैं, कहाँ से सिंगलेट्स मिल रही हैं. 2 ट्रिपलेट चाहिए.
ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ट्रिपलेट मिल रही है, यहाँ से भी ट्रिपलेट मिल रही है, लेकिन यहाँ से क्या मिल रहा है, सेक्सटेट, इसलिए ये गलत। ये ट्रिपलेट देगा, ये क्वार्टेट देगा, राइट, ये भी ट्रिपलेट देगा, ये भी, ओ दैट्स द आंसर। इसमें से 2 ट्रिपलेट और 2 क्वार्टेट मिल रही हैं, तो हम इसको लिख देते हैं उठा के। सी, introduce the structure CH3 CH2 CO O CH2 CH3। ठीक है, आप चाहें तो हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। हमने इसको कैसे सॉल्व किया हम दोबारा से लिख देते हैं आपके लिए। ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास CH2, ये है आपके पास CO O CH2 and CH3। तो आप n+1 रूल अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ट्रिपलेट देगा आपको क्योंकि इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन्स हैं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्वार्टेट देगा क्योंकि इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपको क्वार्टेट देगा क्योंकि इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन्स हैं, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ट्रिपलेट देगा आपको क्योंकि इसके नेबर के अंदर 2 हाइड्रोजन्स हैं, राइट। तो इसका मतलब आपको 2 ट्रिपलेट 2 क्वार्टेट सिर्फ इसी स्ट्रक्चर से मिल रही है, इसका मतलब दैट इज द राइट स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए, इसमें वो कह रहे हैं आपके पास 3 केमिकल एनवायरनमेंट है क्योंकि 3 पीक्स हैं, इसमें से एक मल्टीप्लेट भी हो सकती है, एक डुप्लेट है, एक मल्टीप्लेट है और एक सिंगलेट है। चेक करते हैं कहां पर है डुप्लेट सिंगलेट, यहां से देखते हैं। इस पे अप्लाई करके देखें बेटे। इसके ऊपर सिंगलेट, इसके नेबर में 6 प्रोटॉन है, +1 तो सेप्टेट आ जाएगा, और इस सेप्टेट को हमने क्या नाम दिया हुआ था, मल्टीप्लेट। ठीक है, और इनका सेम एनवायरनमेंट है, इनके नेबर में 1 हाइड्रोजन है, तो ये डुप्लेट देगा आपको। तो एक मल्टीप्लेट, एक सिंगलेट और एक डुप्लेट। बट इशू ये है कि यहां से भी सेम ही आ रहा है, ये भी आपको क्या देगा, डुप्लेट। ठीक, ये आपको क्या देगा, सेप्टेट यानी मल्टीप्लेट, और ये आपको क्या देगा, सिंगलेट। तो इससे भी यही चीज है, इससे भी 3 केमिकल एनवायरनमेंट्स मिल रहे हैं और इससे भी 3 केमिकल एनवायरनमेंट्स मिल रहे हैं। तो इशू इज के इन दोनों में से ठीक कौन सा है। सो लेट्स गो बैक टू दी स्पेक्ट्रम, देखते हैं कि जो सिंगलेट है मेरे पास 3 प्रोटॉन्स की, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाईएस्ट है, राइट। वो हाईएस्ट उसी वक्त होगी जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच होगी, राइट। ये कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा, लिहाजा इससे मिलने वाली जो सिंगलेट है ना, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 से कम होनी चाहिए या 3 तक होनी चाहिए, बट ये ज्यादा है, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज इसमें जो सिंगलेट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा देगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं हाईएस्ट वैल्यू, माय गुडनेस आई हैव डन अ लॉट। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से हटाता हूं बेटा, सही है। मैं आगे बना के दिखा देता हूं आपको क्योंकि ये वर्किंग काफी मैंने कर दी है। हम इसको यहाँ बना देते हैं आपके लिए, हम यहाँ लिख देते हैं, ये है CH3, ये है CH, ये है CH3, ये है CO O CH3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये सिंगलेट देगा, राइट, और हम ये कह रहे हैं कि इस सिंगलेट की केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी 3.2 से 4.0 डेल्टा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, राइट। और ये इस केमिकल शिफ्ट को एग्री कर रहा है। अब इसको देखो, इसके नेबर में 6 प्रोटॉन है, तो ये आपको सेप्टेट देगा, सही है, और सेप्टेट का मतलब मल्टीप्लेट देगा, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी 2.2 से 3.0 डेल्टा, जो कि इसको टैली कर रहा है, और इसको इसलिए टैली कर रहा है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है। तो अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल गिव्स यू दिस केमिकल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा।
ये डेटा ये लिखा हुआ बेटा, दिखाता हूँ। कहाँ डेटा नहीं है, माय गुडनेस, ये रहा, अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ये लिखा हुआ बेटा, सही है। अच्छा, अब हम इन दोनों की बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों का क्या सिलसिला है। तो भाई इन दोनों का सिलसिला ये है कि इन दोनों के इन नेबर में एक प्रोटॉन है तो ये डुप्लेट देगा, और इस डुप्लेट की केमिकल शिफ्ट की रेंज 0.9 से 1.7 डेल्टा होगी, जो कि इसको शो कर रहा है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है ये रहा, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज ये रही, ठीक है। सो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दैट्स अ टफ क्वेश्चन इन अ वे कि आपको बहुत तेजी से ट्रायल एंड एरर की बेस पे काम करना है। ये हो जाएगा CH3 COO CH3। The spectrum of, my goodness, the spectrum of D includes a quadrate at 4.1. Identify the protons responsible for this quadrate on your structure in 1 by labeling these protons with the letter F. Explain why this peak is split into a quadrate, क्योंकि इसके नेबर में 3 protons होंगे, because it has 3 proton in the neighbor carbon. अब वो कह रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम डी है उसमें क्वाड्रेट है, राइट। वो जो क्वाड्रेट है उसके ऊपर एफ अप्लाई करो, एफ अप्लाई करो, एफ। सो बेटे एफ अप्लाई करना है, चलें एफ अप्लाई करके देखते हैं। लेट मी थिंक कि एफ कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, हम इसको एफ कर देते हैं, इसको एफ कर देते हैं, ये रहा एफ, ठीक है। इसकी वजह से ओ माय गुडनेस इसको करेंगे एफ, ठीक है, वहां नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था उसका। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे the spectrum of E has a doublet at 1.1. Identify the protons responsible for this doublet on your structure in 1 by labeling these proton as with letter G. Doublet, तो डबलेट तो बेटा इन दोनों प्रोटॉन्स की आ रही है ना, इन दोनों प्रोटॉन्स की, ठीक है। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, G से। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इनके नेबर में एक प्रोटॉन है, बिकॉज इट हैज 1 proton in its neighbor carbon. Okay, that's the end of the paper. Thank you very much. Give me the feedback of this paper, guys.